So next we come over to the topic of equipotential surface. What does it mean by equipotential surface? The name itself indicates it's a surface at every point on which potentials are equal. Potential is same at all the points. Such a surface is called equipotential surface. So equipotential surface is a surface where potential is same at all the points. Now what is the formula for potential? So V equal to KQ upon R for a point like charge. Now suppose there is a point like charge plus Q. Potential Q is fixed, K is fixed. So if the R is same, then we will be same at all the points. Now for a given point, same value of R. ये R सबके लिए सेम, ऐसे कैसे पॉइंट बनेंगे? तो ज्योमेट्री में सीखा वी गेट अ सर्कल. Circle is a set of points. Circle is a set of points where set of equidistant points. That's how we define circle in geometry. So equal distance पे आए हुए सारे points, R is same for all of them. So we will be same at all the points. Therefore, it becomes a circular surface for this given charge. This circular surface is such that on which potential is same at all the points. So this becomes a equipotential surface. There is a two-dimensional case, we can see the circle, but if it is a three-dimensional case, then if we see in space, there will be a sphere. So for a point like charge, equipotential surfaces are spherical with charge at the center. Okay, so ये हो गया V equal to same V constant for a given surface. ऐसे दूसरे एक surface भी imagine कर सकते हैं where some other value V2 is constant या same. So on the equipotential surface at all the points potential is same. Okay, so that's the concept of equipotential surface for a point like charge. Now if suppose there is a plane charge distribution. So for that plane charge we can get equipotential surface like this. Planes parallel to the given plane charge. Now अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे आएगी? फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इमर्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी पॉइंट पे देखो तो द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, इट्स ऑलवेज 90 डिग्री. The point where electric field line and equipotential surface intersect is always 90 degree. यहाँ पे देखो तो ये भी 90 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस या अदर वे अराउंड. इक्विपोटेंशियल सरफेस is always perpendicular to electric field line at point of intersection. यानी कि both intersect perpendicularly. क्वेश्चन यहाँ रेज होगा ऐसा क्यों? तो अगर देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जैसे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, किसी चार्ज को अगर मूव किया, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी ऑन द सेम सरफेस. पोटेंशियल इज सेम, सो देयरफॉर difference in potential is 0 between A and B. Now we know that work done is equal to charge into delta V. Delta V तो 0, तो no work done. यहाँ से आने जाने में कोई वर्क नहीं हुआ. मतलब क्या हुआ? E bar dot dl bar is 0. What was that? याद है ना? Work required to move unit charge वो 0 हो गया. And E dot dl कब 0 होगा? डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है? जब बोथ आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, यानी कि E bar डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी at every point of intersection of electric field line and equipotential surface there is always 90 degree. तो यहाँ पे भी देखें तो क्या होगा? प्लेन सरफेस चार्ज के लिए फील्ड लाइंस म्यूचुअली पैरेलल एंड यहाँ पे सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया. सो फॉर प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर प्लेन चार्ज the equipotential surface will be planar and lines will be perpendicular to this. So this is the concept of equipotential surface. एक तो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एंड दूसरा उसका ये कंसेप्ट at point of intersection equipotential surface and electric field line are mutually perpendicular. Okay, so that was equipotential surface. So next we go on for relation between electric field intensity E bar and potential V. आप बोलोगे वो तो पहले ही कर लिया, स्टार्टिंग वही था, पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी.
क्या देखा था हमने स्टार्टिंग में? तो शुरुआत तो अपनी वही है स्टैंडर्ड, वी नो दैट, हमको सब कुछ पहले से ही मालूम होता है दैट v इज इक्वल टू नेगेटिव ई बार डॉट डी एल बार। लाइन इंटीग्रल ऑफ ई बार गिव्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमको पहले से पता है, यानी वी हैड ऑब्टेन ऑलरेडी अ रिलेशन बिटवीन वी बार एंड ई बार। तो ये तो वी एंड ई के बीच का रिलेशन है, तो ई एंड वी के बीच का रिलेशन, ये क्या हो गया? दोनों एंड है तो कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे। नहीं, नाउ पहले क्या कहता हमने? पोटेंशियल ऑब्टेन किया था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, we had obtained potential in terms of electric field intensity. Now we'll do the reverse, obtaining electric field intensity in terms of potential. तो ये क्या नया है? हमने तो already we know about it that somewhere in 11th standard we had studied that if differentiation of fx is gx, then integration of gx is equal to fx. यानी अगर f का डिफरेंशियल g है तो g का इंटीग्रेशन f होगा, रिवर्स है दोनों, वी नो वेरी वेल। इफ f is differentiation of f is g, then integration of g is f, both are reverse। तो यहाँ पे वैसे रिलेशन मिल जाता है क्या? therefore e bar will be equal to माइनस साइन इधर भेज दिया dv by dl, applying the same concept, no problem, it's correct, perfect। now rather than d I will put displacement के लिए dr लिख देते हैं, and v is a function of position, we know very well, with the change in position potential changes, with the change in position potential changes, this is what we get। अब इस फॉर्मूला को डिराइव करना हमारे सिलेबस में नहीं है, इससे हम लोग इसको खाली समझ लेते हैं क्या। तो इसमें एक लिमिटेशन है फॉर्मूला में, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर वेक्टर को इक्वेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या पंगा है? r bar is position vector given as x y z, three coordinates, xi plus y, or you can write it as xi cap plus yj cap plus zk cap. r is a function of three vector. Now electric field का x component electric field is given as minus dv by dx। x component लेने का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए r को, यानी v को। अब यहाँ पे v तो फंक्शन ऑफ x y z तीनों है, v is a function of three variables x y and z, but we are differentiating with respect to x, y and z भी वेरिएबल है, उनको क्यों नहीं कंसीडर किया? आप क्वेश्चन यहाँ से समझो, v is a function of position which is having three coordinates, यानी all the three are variables, but we are differentiating v with respect to x only to obtain x component, यानी v even though being a function of more than one variables, we are differentiating v with respect to any one variable considering other two to be constant। फिर से एक बार वर्डिंग सुनना बराबर, v is a function of three variables, we are differentiating it with respect to only one variable assuming other to be constant। मतलब क्या? पार्शियलिटी चल रही है x के साथ, यहाँ पे x के साथ पार्शियलिटी है, बाकी दोनों को तो कंसीडर नहीं किया है। व्हाट इज दिस? होता है कई बार क्लास में ऐसा होता है, हमने फेस किया हुआ है 8, 9, 10 में कि भाई हमारे क्लास के टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्लास के 2-3 बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाते, बाकी सारे निगलेक्टेड चाहिए। वो कौन 2-3? हाँ याद आ गया ना, जो पहले उठ के यस सर करते रहते हैं। उसने बोला हाँ आ गया समझ में, तो सबको समझ में आ गया, भले हम लास्ट बेंच पे बैठे हो तो वी आर ऑलवेज लूजर्स। तो क्या हुआ ये? हम बोलते हैं ये तो सर पार्शियलिटी करता है, छोड़ो ना यार, ऐसे कुछ यहाँ पे भी है, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, फिर भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी वन वेरिएबल निगलेक्टिंग अदर टू। मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, इट्स कॉल्ड पार्शियल। क्या सर मजाक करते? नहीं ऐसा है, मैथ्स में आएगा ये डिटेल में, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए हम लोग सिंबल थोड़ा चेंज कर देते हैं, डी के बदले डेल लिखते हैं, डेल इंडिकेट्स पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये जब सिंबल है तो डिफरेंशिएशन है, बट in this case when such symbol comes it's a partial differentiation, meaning the function is having more than one variables, we are differentiating with respect to any one variable neglecting other two। तो x कोऑर्डिनेट ऐसे मिला, तो y के लिए क्या करेंगे? अरे वाह, अब तो एकदम इजी हो गया, डिफरेंशिएशन with respect to y neglecting x and z, and z के लिए z कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे? partial differentiating v with respect to z considering other two to be constant। and फिर e कैसे, e बार कैसे मिलेगा? तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मिलेगा? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड कैप। दिस हाउ वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी ला रहे हैं, ये मेथड से लेना है पार्शियल डिफरेंशिएशन से। तो बोला कि सर यार ये तो कुछ ज्यादा दिमाग में टप्पी नहीं पड़ी, ये जस्ट फॉर्मूला है। चलो एक काम करते, एक सम कर लेते हैं
ताकि हमको क्लियर हो जाए, बराबर है। अब सम कुछ ऐसा बनाते हैं, ये अभी हाल बनाया हुआ ताजा सम है, इट्स अ फ्रेश प्रिपेयर्ड कुकी। यू आर गिवन दैट पोटेंशियल इज, कोई भी आंकड़े ले रहे हैं, 2x² y माइनस 3y क्यूब z प्लस 4z रेज टू 4x, ऐसा ले लिया फिर फॉर्मूला। सो पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z, 3 वेरिएबल्स। नाउ वी आर टू ऑब्टेन क्या करना है, ex ढूंढो, ey ढूंढो, ez ढूंढो, तीनों चीजें ढूंढनी है, एज वेल एज ई बार भी ढूंढना है। ओके, इसका एक तजुर्बा हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा हमारा। चलो ex क्या है, ex इज माइनस डेल v बाई डेल x, माइनस डेल बाई डेल x ऑफ v, 2x² y माइनस 3y क्यूब z प्लस 4z रेज टू 4x। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x कंसीडरिंग अदर टू बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल नहीं कांस्टेंट्स, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का, बाकी y एंड z को कांस्टेंट लेने का। पहला टर्म देखे तो माइनस साइन बाहर, पहले का क्या आएगा, 2y तो कांस्टेंट बाहर आ गया, x² का 2x डिफरेंशिएशन माइनस 3y क्यूब z, इसमें तो x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0, कोई वेरिएबल ही नहीं है इसमें, x तो है ही नहीं। लास्ट टर्म में 4z रेज टू 4, x का डिफरेंशिएशन तो 1, तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 4xy माइनस प्लस 4z रेज टू 4, ये हो गया x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, हमको बोला फाइंड ई बार एट 1 1 1 पोजीशन, तो x y z 1 1 रखने का यहाँ पे, तो देयरफॉर ex विल बी इक्वल टू 1 1 1, 4 प्लस 4 8 माइनस 8 आई क्या, माइनस 8 सॉरी, न्यूटन पर कूलम, x हो गया। सिमिलरली गोइंग फॉर y कोऑर्डिनेट, माइनस डेल v बाई डेल x एंड डेल v माइनस डेल बाई डेल y सॉरी, y कोऑर्डिनेट चाहिए तो y के स्पेस में डिफरेंशिएट किया, फॉर्मूला 2x² y माइनस 3y क्यूब z प्लस 4z रेज टू 4x। चलो फटाफट अब तो ये तो आ जाएगा, नेगेटिव 2x² कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएट, तो y का तो 1 माइनस 3z कॉमन, y क्यूब का 3y², लास्ट में तो y है ही नहीं 0, सो दिस कम्स आउट टू माइनस नेगेटिव 2x² माइनस 9y² z। नाउ फॉर 1 1 1 ey क्या लिखेंगे, 1 रखो यहाँ पे 1 1, तो 2 माइनस 9 7, नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव 7 हो जाएगा, 7 न्यूटन पर कूलम, बराबर है। वैल्यू 1 1 1 रख दिया x y z का। सिमिलरली z विल बी माइनस डेल v बाई डेल z, अब डेल z के रिस्पेक्ट में माइनस डेल बाई डेल z ऑफ 2x³ y सॉरी 2x² y माइनस 3y² z प्लस 4z रेज टू 4x, सो दैट इज नेगेटिव, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो कांस्टेंट हो गया 0, माइनस 3y² z कॉमन, z रेज टू 4 का 4z³, सो दिस विल बी नेगेटिव माइनस 3y³ प्लस 12xz³। Writing for 1 1 1 we get Ez equal to 3 plus 12 minus 3 plus 12 9 minus 9 Newton per coulomb. So what do you get E bar as? So E bar will be equal to minus 8 I cap plus 7 j cap minus 9 k cap Newton per coulomb. That's how we get the electric field intensity using this method. Main highlight of this method was how to do partial differentiation. So you get from potential, you get electric field intensity by this method. Is it clear? Pause करके ये सम उतार लेना.